Yes, class. So start. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. The meaning of this chapter is यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. Anyone can say what do you understand by nationalism? कोई बच्चा बता सकता है नेशनलिज्म का क्या मतलब है? What do you understand? Ma'am, If ideology. India wins in cricket match, we all the Indians feel very happy. This feeling is this happiness is what? Huh? Love for our country, pride for our country, and the feeling of togetherness that all citizens are Indians, whether they live in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, in any part of the country, we all are Indians. This feeling of togetherness, belongingness is known as nationalism. है ना? हम अपनेपन का एक जो भाव है वही है राष्ट्रवाद की. हम सब लोग एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही टेरिटरी से बिलोंग करते हैं. हमारा देश एक है, हमारी जमीन एक है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, गौरवशाली अतीत है. ये एक जो सोच है, विचारधारा है, और एक ये जो अपनेपन का भाव है, यही राष्ट्रवाद है. तो यूरोप में ये कैसे हुआ? हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि यूरोप में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, मोनार्की थी. मोनार्की का मतलब याद है आप लोगों को? What is the meaning of monarchy? King. King, the rule of king, Rajshahi. Monarchy means what? The rule of a king. Okay. So today we are going to understand the rise of nationalism in Europe. The idea of nationalism emerged in Europe, and we are going to start with a painting created by Frederick Sorio. This is the book. You all have your books. I have taken a book from you, and you have a book. This is the painting. This painting is made by whom? You have to name. आप नाम बताएंगे. Frederick Sorio. Frederick Sorio, French name. Okay. You can pronounce, but you must write the correct spelling. Frederick Sorio. It is given here in my blackboard also. I have written. You can see here. A print prepared by Frederick Sorio. In which year? In which year it was prepared? This painting was prepared in which year? 1848. 1848. Okay. It is the print of four painting. It is the Frederick Sorio just painted figure of four paintings, and it was published with the heading, that is, what was the heading? What he gave the name of his paintings? Anybody? Democratic and public. Social Republic. Democratic and Social Republic. Okay. डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के नाम से फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग पब्लिश की है 1848 में. इन 1848. ओके. 1848 में इसने एक पेंटिंग एस्टेब्लिश की, पब्लिश की है. द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes marching in a long train. देख लो, सब लोग आ रहे हैं वन बाय वन, एक लॉन्ग
ट्रेन के रूप में you can see it in the book that men and women, सभी लोग कहाँ के, यूरोप और अमेरिका के सभी लोग, ऑल एजेस, सभी एज के, सभी एज के और सोशल क्लासेस के, मार्चेज इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज द पासेज बाय। एक स्टैच्यू है लिबर्टी का, लिबर्टी स्वतंत्रता की देवी, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। It is given here. It is a female figure. Already we know about it in class 9. One by one students are coming. Okay. Now, Statue of Liberty. It is a female figure. And all the men and women are coming from different countries like America and different countries of Europe and paying homage, यानी कि क्या दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कौन से स्टैचू को, किसकी मूर्ति को? लिबर्टी मीन्स व्हाट? लिबर्टी मीन्स आजादी की देवी, आजादी की मूर्ति को सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वन बाय वन कंट्री एक ट्रेन बनाते हुए एक लंबा एक के बाद एक सारे देश आ रहे हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. लिबर्टी को तो आप लोगों को याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक महिला के रूप में दिखाया गया है, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया था, ठीक है ना। There you can recognize the torch of enlightenment. Torch of enlightenment, अब देखिए इसके हाथ में, एक हाथ में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में ज्ञान की मसाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ओके, शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दूसरे तरफ से अधिकार पत्र है, व्यक्तिगत अधिकारों का जो एक ये है, कानून है, एक्ट है, उसको एक हाथ में लिए हुए है। यानी कि एक हाथ में ज्ञान की मसाल है, दूसरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जो अधिकारों की बात करती है। तो ज्ञान जो ये लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उस मूर्ति को सब लोग वन बाय वन आ रहे हैं। ये एक कल्पना है, एक विजन है पेंटर का, फ्रेडरिक सोरियो का, जो कि चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के सभी देश रिपब्लिक बने, वहां से मोनार्की समाप्त हो, ऑटोक्रेसी खत्म हो, एक व्यक्ति का शासन, एक निरंकुश राजा का शासन खत्म हो और वहां पे रिपब्लिक आए, लोकतंत्र आए, लोगों डेमोक्रेसी आए, इसकी वो कल्पना कर रहे हैं और इस पिक्चर में वो ये दर्शा रहे हैं। ओके, on the earth in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. नीचे में you can see here remains of shattered absolutist regime, जो निरंकुश राजा लोग धराशाही हो गया उनका शासन, उनके अवशेष धरती पे बिखरे पड़े हुए, ये पिक्चर में बताया गया है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है। Many question arises from this related to this picture, so you have to write all important points related to this painting. Okay, absolutist, word absolutist, it is given, you can say here, absolutist means what? A government or system of rule that has no restraint on the power exercised. ऐसी सरकार, एक निरंकुश सरकार जिसका ताकत पे, सत्ता पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा सकते, जितनी मर्जी जितना वो चाहे वो ऐसा कर सकते हैं।
In history, the term refers to a form of monarchical government. एक राजशाही प्रकार का ये शासन इतिहास में एब्सोल्यूटिस्ट को दर्शाता है. That was centralized, जो केंद्रीयकृत हुआ करता था, एक ही व्यक्ति का शासन. ओके. Militarized and repressive, बहुत ही क्रूर होता था और दमन चलाने वाला होता था और सैन्य ताकत पर आधारित होता था. सेना का प्रमुख हुआ करता था, पूरा सेना का संचालन से पूरा एम्पायर को चलाया जाता था. ओके. In Sorio's utopian vision, this painting is the dream of the painter Frédéric Sorio, which was a French artist. Okay, उसका क्या था? उसका ड्रीम ये था. यूटोपिया क्या है? यूटोपियन मीन्स यूटोपियन, इट इज गिवन यूटोपियन a vision of a society that is so ideal that is unlikely to be actually exist. इतना ज्यादा काल्पनिक एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना सोरियो ने की. पूरा विश्व, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका रिपब्लिक के रूप में बन जाएगा वन बाय वन. इतना काल्पनिक था कि जिसका एक्चुअल में कल्पना करना मुश्किल है. यानी कि इतना आदर्शवादी था कि जो सिर्फ पेंटिंग में संभव है और इतना अधिक एक्चुअल में ऐसा राज्य नहीं हो सकता है ना. In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national customs. Leading the procession one by, देखो सब लोग अपना अपना ड्रेस कोड में आ रहे हैं. हर एक नेशन का अलग अलग इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. अपना झंडा लिए हुए आ रहे हैं. वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द. कौन कौन से देश आ रहे हैं? यू हैव टू नेम द स्टेट. कौन कौन से देश आ रहे हैं वन बाय वन? You can say the names of all the states. मैम आपका माइक म्यूट है. मैम आपका माइक म्यूट है. नेक्स्ट, फ्रांस. Identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue. अभी तुरंत यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं अभी तक, और उसके पीछे फ्रांस है ट्राई कलर लेके. He is followed by the people of Germany. अब फ्रांस के पीछे कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, bearing the black, red and gold flag. What is the color of Germany flag? The color used in German flag were red and gold. Red and gold flag. Black also, black, red and gold flag. Okay. Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a United States. यूनाइटेड नेशन. जिस समय ये पिक्चर सोरियो ने बनाया था उस समय तक जर्मनी क्या नेशन स्टेट बन चुका था?
जर्मन तब तक की यूनाइटेड नेशन स्टेट नहीं बना था, लेकिन पेंटिंग में दिखा दिया गया कि फ्रांस को फॉलो कर अब फ्रांस के पीछे जर्मनी अपना राष्ट्रीय झंडा जो कि ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का है वो लेके आ रहा है। यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, इन द पेंटिंग ऑल्सो, द फ्लैग ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Okay, मतलब कि इसमें एक जो पेंटिंग है ये झंडा लेके आ रहे, एक आशा का किरण है। पहले ही पेंटिंग में बता देना कि जर्मन भी होगा जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उनका एकीकरण एक होकर के अब वो भी आएंगे, वहां भी राजा का शासन खत्म होगा और वो भी अब एक रिपब्लिक बनेगा। इसके पीछे पीछे न सिर्फ जर्मनी जो अभी तक नेशन स्टेट नहीं है, उसके साथ साथ और कौन कौन है? फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। Many countries are there. You can find out in the world or Europe map. Okay, कौन कौन से और हैं? ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। From the heavens above, Christ saints and angels gaze upon the scene. सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से। कौन? क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल जो देवदूत लोग हैं, पेंटिंग में दिखाया गया। इट इज शोन इन द पेंटिंग दैट दे आर ग्रेज अपॉन द सीन। ये लोग नीचे देख रहे हैं ऊपर से, यानी कि अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे देश और दुनिया में भाईचारे के कामना करते हुए जैसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से, इसलिए पेंटर ने इनको दर्शाया है, इनको दिखाया है। So till now we discussed about the painting painted by French artist Frederic Soriot in 1848. Who was Frederic Soriot? Ma'am, a French artist. The French artist. What was his dream? What was his dream? Print visualizing of world. His dream was to democratic make and social whole republics. Europe and America into a democratic and social republic. Okay. He gave the title of his painting was what? One more question may come, that what was the title of the painting? The dream of worldwide democratic and social republic. Okay, democratic worldwide, democratic and social republics. So on the basis of this painting, we can understand that how the feeling of nationalism emerged in Europe. Okay, so the next topic is the chapter which will deal with many of the issues visualized by Soriot in figure 1. Figure 1 में जो भी हम लोग देख रहे हैं पेंटिंग के थ्रू कि 1 by 1 किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका के सारे राष्ट्र लोकतंत्र और गणतंत्र के लाइन में आते जा रहे हैं, उसी के बहुत सारे मुद्दों को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। We are going during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about a sweeping changes in the political and mental world of Europe. बोल रहा है कि 19th century में, during the 19th century, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभरा जिसने यूरोप के
राजनीतिक और मानसिक जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लाई। The end result of these changes was the emergence of nation state। और जो पॉलिटिकल और मेंटल चेंज आई यूरोप के कंडीशन में, उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में बहुत सारे नेशन स्टेट्स का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ओके, इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। किसके जगह पे? यानी कि यूरोप में पहले क्या थे? यूरोप में पहले मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, ऐसे ऐसे साम्राज्य थे जो एक से कई ज्यादा राज्यों तक फैले हुए थे। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एक वंश का शासन हुआ करता था जो कई कई देशों में फैला हुआ था, विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। उसके जगह पे राज्य नेशन स्टेट का, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ओके, the concept and practice of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। ये जो साम्राज्यवाद शुरू हुआ था, बड़े बड़े राजाओं का शासन हुआ था, ये लंबे समय से, बहुत लंबी परंपरा से सेंट्रलाइज पावर का सेंट्रलाइजेशन था। एक राजा के हाथों में निरंकुश सत्ता थी, सबसे ज्यादा पावरफुल थे, काफी लंबे समय से ये चला आ रहा था, ठीक है ना। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये तो बहुत लंबे समय से आ रहा था ये इसका टाइम, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो नेशन स्टेट जो हुआ वो कैसे इमर्ज हुआ, न सिर्फ रूलर्स के द्वारा बल्कि उसके लोगों के द्वारा भी। उनके अंदर ये भावना आई, उस समय के राजाओं के साथ साथ वहाँ के जनता में भी, वहाँ की जो जनता थी, आम सिटीजन थे, उनके अंदर भी एक फीलिंग आई, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कि हमारी एक साझा पहचान है, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है ना, और शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, हमारा एक ही परंपरा है, हमारी एक विरासत है, एक इतिहास है। ये सेंस डेवलप हुआ लोगों में, उसके वजह से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, नेशन स्टेट्स बने। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोमोरियल। बोल रहा है कि ये परंपरा से ऐसा लोगों के अंदर सोच नहीं था कि हम लोग एक ही इतिहास, हमारा एक साझा इतिहास है, हम एक ही जाति वंश परंपरा के, एक ही कल्चर के हैं और हम सब एक है। यूरोप के लोगों में शुरुआत से ही ऐसी भावना नहीं थी। ये भावना कब पनपी? ये बाद में बहुत धीरे धीरे ये हुई। किसके थ्रू हुई? थ्रू स्ट्रगल, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। करे बहुत लंबे संघर्ष के बाद जाकर के ये भावना उत्पन्न हुई। कॉमन पीपल ने इसके लिए कड़ा संघर्ष, लंबा संघर्ष किया। यहाँ के लीडर्स ने, नेताओं ने बहुत सारे कदम उठाए राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से, वो कौन सी प्रक्रिया थी, डाइवर्स प्रोसेस था, सिर्फ कोई एक प्रोसेस से शुरू नहीं हुआ, बहुत सारे किस किस तरीके से, किस परिस्थिति की वजह से यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पनपी और राष्ट्र, नेशन स्टेट्स का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके लिए सबसे पहला जो सोर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन आता है या 3 मार्क क्वेश्चन आता है कि what was the role of French Revolution in spreading the idea of nationalism in Europe। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की क्रांति की क्या भूमिका है? What was the role? डायरेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन, we are going to deal with that topic। First of all, today you have to learn new words. 2 new words are there.
What two new words are there? You tell me. कौन से दो न्यू वर्ड्स आज आप लोगों ने जाने? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू वर्ड नंबर 1, एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुशवाद. Anyone can send me what did you understand by absolutist? Absolutist मतलब आपने क्या समझा? And after that you have to send your answer. What do you mean by utopian? Utopian vision. Absolutist का a government or system of rule that has no restrictions. जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया, राजा का वो शासन या उस प्रकार का सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं हो. ठीक है, रिस्ट्रेंट, कोई अंकुश नहीं लगे, जो उसकी मर्जी वो कर सकता है. And utopia means utopian. Utopian. Hello class. These two words you have to learn. I am asking that what did you understand about utopian? What did you understand by the term utopian? Vision of society. Ideal vision of society. Okay. So ideal that it is unlikely to actually exist. It is impossible to exist. लगभग ही असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना आदर्शवादी राज्य नहीं बन सकता. ओके. In this topic, we read about some countries. You have to name them. In Frederick Sorio's painting, some names came. You have to send the names of the country. The painting is talking about. Anybody? मैम अमेरिका. किन किन देशों के बारे में बताया गया है इस पेंटिंग में? You have to name. मैम अमेरिका. America. Only about America. Only about America.